राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दलों के हंगामे और अव्यवस्थित व्यवहार पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सत्र के दौरान जब विपक्ष ने बार बार नियमों का उल्लंघन करते हुए नारेबाजी और हंगामा किया तो धनखड़ ने स्थिति पर नियंत्रण करते हुए विपक्षी नेताओं को संविधान और संसदीय मर्यादा का पाठ पढ़ाया। धनखड़ ने दो टूक शब्दों में कहा कि संसद जनसेवा का मंच है, ड्रामा करने का नहीं। जनता को आपसे जवाब चाहिए, तमाशा नहीं। उनके इस बयान के बाद सदन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने विपक्ष को ये भी याद दिलाया कि संसदीय कार्यों में बाधा डालना लोकतंत्र के हित में नहीं है और इसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। धनखड़ के इस कड़े रवैये से विपक्ष भौचक्का रह गया, जबकि सत्ता पक्ष ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। सोशल मीडिया पर उनकी इस सख्ती की सराहना हो रही है। वन सेकेंड, क्या हो रहा है? आप बताइए सर, जब अन्याय Take your seat. Please go to your seat. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to name and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा, nothing else but drama. I don't want drama. No. PT Usha. I want to express my gratitude to the various ministries, public sector undertakings and Department of the Central Government for prioritizing sports quota recruitment. Nothing is going on record. It is heartening to witness the support extended to our talented sports persons, facilitating their inclusion in various government organizations. While acknowledging the positive steps taken, I would like to draw your attention to a critical matter that requires consideration for the continued benefit of sports persons, recruitment through sports First quota. ask them to sit their seat. I'll take them after some time. The existing policy outlined in DOPT Office Order dated 16/7/1985 Only after they go to their seat. special casual leave to 30 days They have to go to their seat. appears to be inadequate for the proper training and They have to development go of their seat. these athletes. They have to go to their seat. Such a restrictive policy has led numerous I sports hereby persons to name- either halt their sports careers or withdraw the active sports despite having the potential to excel in sports. No. I would like to draw I'll your take it attention. up. First you go to your seats. Go to your seats first. First go to your seats. Go to your seats. If you don't go to your seats, I know how to deal with situation. Go to your seats. Go to your seats. One second. रुकिए एक बार, मैं बता रहा हूँ, सुनिए. Honorable members, I had the occasion, and listen to me carefully. We did not work for 5 days. During those 5 days, Rule 267 notices were raised. Not a single one regarding farmer. Now crocodile tears? No, not given. No, not given. I am aware. You are not given. Only now. No. I'll allow Pramod Tiwari after she has concluded. No, तो बैठिए. After one more. After interval. PT Usha ji, please continue. Respected Chairman, sir, I want to express my gratitude to the various ministries, public sector undertakings and departments of the central government for prioritizing sports quota recruitment. It is heartening to witness the support extended to our talented sports persons, facilitating their inclusion to various government organizations. No, I will not. By acknowledging I will not allow the it. positive step taken, I would like to draw your attention to a critical matter that requires consideration for the continued benefit of sports persons recruited through the sports quota. The existing policy outlined in DOPT Office Order dated 16/1985
Restricting special casual leave to 30 days appears to be inadequate for the proper training and development for these athletes. Such a restrictive policy has led numerous sportspersons to either halt their sports careers or withdraw from active sports despite having potential to excel in sports. I would like to draw your attention to the special policy implemented by the Indian Railways, which recognize the need for continued training and development of sportspersons. The Indian Railways offers special casual leave and incentives such as cash awards, auto-tut promotions and increments to meritorious athletes to boost their morale. I propose that the POPT order dated 16/7/1985 be डॉक्टर दिनेश शर्मा डॉक्टर दिनेश शर्मा need to address the issues related to environment protection. माननीय सभापति महोदय, मुझे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे को सदन के समक्ष उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल, वायु और पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर्यावरण से जुड़े गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ये संकट हमारी जीवन शैली, औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण और अधिक जटिल हो रहे हैं। विशेष रूप से जल संकट की स्थिति चिंताजनक है। विश्व के कुल पेयजल का 4% हिस्सा ही भारत में बचा है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कुल 70% भारत की है। इससे स्पष्ट है कि भारत में जल संसाधन बहुत सीमित हैं और उन पर अत्यधिक दबाव है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों का अति उपयोग और उपेक्षा के कारण पीने योग्य जल का स्तर निरंतर घट रहा है, जिससे भविष्य में जल संकट और गहरा हो सकता है। इसी प्रकार वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमारे पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा, सर्दी और गर्मी का सामान्य चक्र असामान्य हो गया है। अब सर्दी के समय भी गर्मी का अनुभव होता है और वर्षा के मौसम में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बदलते मौसम का सीधा प्रभाव न केवल फसलों पर पड़ रहा है, बल्कि जीवन की विविधता में भी संकट है। अनेक वन्यजीवी विलुप्त के कगार पर हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ रहा है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। जल संरक्षण के लिए जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जल स्रोतों का पुनर्भरण हो सके। इसके अतिरिक्त अंधाधुंध वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे और पर्यावरण संतुलित रहे। हमें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके जल और पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही ऊर्जा के स्रोतों को सतत विकास की ओर केंद्रित करना होगा, जिससे ऊर्जा का उपयोग संतुलित और नियंत्रित तरीके से किया जा सके। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया इस विषय पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि हम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। श्री प्रमोद तिवारी 1 मिनट। सर, धरती का भगवान अन्नदाता, उसके ऊपर लाठियां चल रही हैं। उससे जो वादा न्यूनतम समर्थन मूल्य का किया गया था वो नहीं पूरा हुआ। उससे जो कहा गया था देने के लिए कुछ नहीं किया गया। ये सरकार किसानों की दुश्मन है और हमारी आवाज को हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।